Good morning, friends. We continue with overheads. So, other day we discussed overheads briefly. I'll be taking overheads further. पूरा fear overheads का खत्म हो जाएगा तुम्हारा. So please listen up carefully for overheads. समझ लेना. So on Saturday we covered first 5 basic steps. See, entire absorption costing is based on 3 broad steps. So on your screen, absorption costing, 3 broad steps. First is primary and secondary distribution. Second is absorption. And the third is under oblique over absorption. Now we are going to go towards what? Under oblique over absorption. We have just understood first 4 steps. Bear with my voice, not improved today also, but I'll take a lecture, don't worry. एक कोई तो लड़की है मुझे मैसेज कर रहा है, सर आर यू गोइंग टू टेक अ लेक्चर टुडे? नहीं, आई डोंट नो हु वाज इट. ऐसा धोने का मन कर रहा था ना. So listen up carefully. So we first go towards under oblique over absorption. Quickly, I hope you are writing it down and you noted it. हमने क्या किया था? ये देखिए, हम यहां तक आए थे. अलग अलग मेथड्स थे, वो हमने सब कुछ कर लिए थे. याद है क्या? So this is what we had done. First, I said we estimate the overheads, then we do allocation of overheads, then there is a cost, apportionment. Allocation plus apportionment is your primary distribution. Are you clear on that? And finally, there is a reapportionment of overheads. You get it? After reapportionment, amount of overheads that should remain should be exactly equal to 0. तो हमने reapportionment के methods देखे थे, direct redistribution, step ladder method and simultaneous equation. Are you clear? And then I said, ये सब explain किया था मैंने. And then I said, whatever overheads are there in the production department, they must be absorbed by some output. Overheads in a production department must be absorbed by some output. So output is there in the production department. तो हम उसको absorb करेंगे. क्या basis पे absorb करेंगे बच्चों? Suitable basis. अभी मैंने कुछ basis आपके साथ discuss किए थे. The most important basis is gonna be machine hour rate. So we are going to estimate the overhead machine by machine or category of machines. क्या बोला मैंने? Machine by machine or category of machine. And then once you get a comprehensive overheads relating to machine, we divide it by number of machine hours. You get a setup time, productive time, 2-tier machine hour rate. Amounts might be given per annum per month. ये सब कुछ हमने explain किया था. You can absorb overhead on labor hour rate basis or something like that. Can I go ahead to the subsequent steps now? Now this is important. Since now it is a revision, I will be able to link to over standard costing chapter also. मैंने उस टाइम पे भी लिंक किया था ओवरहेड्स के टाइम पे. आपको कितना समझा होगा वो मुझे नहीं मालूम उस टाइम पे. सुन लेना. स्टेप नंबर 6. स्टेप 6 इज absorbed overheads. क्या बोला मैंने? Absorbed overheads. What is absorbed overheads? सुन लेना कान खोल के. कितना खर्चा होना चाहिए था. सो absorbed overhead is, तुम्हारे लैंग्वेज में लिखता हूं, कितना खर्चा. अभी हाउ डू आई राइट दैट? इज दैट राइट?
होना चाहिए था। Shut your mouth. So what we have to understand is how much expenditure should have taken place. Should have taken place for what? For actual output. बच्चों ये जो absorbed overhead है ना, it is nothing but standard cost. Standard cost is for actual output. Budgeted cost is for budgeted output. Budgeted cost is for budgeted output. Standard cost is for standard output. Please concentrate. YouTube public, I hope you are able to concentrate. क्योंकि दिस इज टू गुड कॉन्सेप्ट. अगर ये आपका समझ गया ना, आपका डर पूरा खत्म हो जाएगा. So this is nothing but a standard overheads. Standard overheads or a standard cost is always for actual output. कितना खर्च होना चाहिए था, ये हमें निकालना है बस. So absorbed overheads is a expenditure that should have been incurred on actual output. See, we have got absorption rate. Step 5 was absorption rate. Tell me, absorption rate, was it on actual basis? No. Absorption rate was estimated overhead oblique budgeted overhead divided by budgeted machine hours or budgeted labor hours or budgeted output or as a percentage of labor cost, as a percentage of prime cost. कुछ भी हमने यूज किया होगा. Absorption का basis कुछ भी रहने दो, I don't care. How do we calculate absorbed overhead? Before I give you formula, let me give a simple example. Absorbed overhead calculate करने के लिए. I say standard hours per unit are 4. Standard hours per unit are how much? 4. Budgeted output, I did not say actual output. Budgeted output. See, even if you forget a formula in exam, using this logic you can create the formula. Budgeted output was, let's say, 25,000 units. I say budgeted overheads. अब वो वेरिएबल हो सकते हैं या फिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. उसका एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन इज इट वेरिएबल और डिपेंडिंग ऑन इज इट फिक्स इज गोना वेरी इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर. इन ओवरहेड चैप्टर तुम्हारे ओवरहेड वेरिएबल हो या फिक्स हो, हमारा एनालिसिस सेम रहता है. क्यों? ओवरहेड कॉस्ट चैप्टर जो है उसमें जो एनालिसिस है वो अकाउंटिंग एंगल से है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में जो एनालिसिस है वो मैनेजमेंट एंगल से है. कौन सा एंगल से है? मैनेजमेंट. सो बजटेड ओवरहेड्स आर, लेट अस से, ₹9,50,000. Budgeted overheads are ₹9,50,000. Do you understand? So you can calculate absorption rate now. And I say actual output is 31,000 units. Actual overheads, अब वो फिक्स है या बजटेड है, वेरिएबल है, वो छोड़ दो. राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कैलकुलेशन ऑफ absorbed overhead. Once you get that calculation right, boss, analysis is pretty easy. Just have patience. So I say, for example, this is 10,85,000. नंबर ऐसा ही बोल रहा हूं. And I say calculate absorbed overhead, calculate under oblique over absorption amount. अब बच्चों हमने क्या किया होगा? हमने absorption rate सेट किया होगा. Absorption rate can be set on per hour basis or per unit basis or percentage of labor costs, whatever basis. Right now I am explaining you absorption rate on the basis of per unit and per hour, and I am going to tell you that we are going to make a mistake. Have patience. Solution में देखो, अभी मैं absorption rate निकालता हूं. Absorption rate. How do I get absorption rate? Now, per what? Per hour लेता हूं मैं पहले. Absorption rate is always on which basis?
estimated data basis. So how will I get it? I will get it as budgeted overheads divided by budgeted hours. Budgeted overheads divided by budgeted hours. तो budgeted overhead कितने हैं तुम्हारे? 9,50,000. Budgeted hours कितने आएंगे? 25,000 into 4. That is 1 lakh. So it comes out to be how much? 9.5 per hour. हाँ ना? What is absorption rate per unit? Can you get absorption rate per unit also? Yes. Absorption rate per unit will be 1 unit requires 4 hours. So 9.5 into 4. How much? 38 per unit. ठीक है, ये absorption rate आ गया. दोनों तरीके से मैंने absorption rate कैलकुलेट करके रखा. Once you get absorption rate, my friend, it is very easy for us to get answers subsequently. ये आ गया absorption rate per hour और दूसरा आ गया absorption rate per unit. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? Absorbed overhead. Absorbed overhead का मतलब क्या है? For actual output, how much cost should have been incurred? There are two ways. Absorbed overhead के दो तरीके हैं. You can take actual output. सिंपल क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था? हम बोलते हैं एक यूनिट के लिए 38 का खर्च होना चाहिए. पर यूनिट कितना खर्च होना चाहिए? 38. तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है तुम्हारा? 31,000. तो एक यूनिट के लिए अगर 38 होना चाहिए था तो 31 के लिए कितना होना चाहिए था? बहुत सिंपल है ना यार. एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट. बच्चों ओवरहेड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आज तक मैंने एग्जाम में देखे ना, मेजॉरिटी ऑफ देम, वहां पे आउटपुट ही दिया रहता है, आवर्स दिया ही नहीं रहता है. मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर द वन वेयर एब्सॉर्प्शन रेट इज पर यूनिट. बोलो 31,000 इंटू 38. बोलो अमाउंट 11,000. 11,78,000. क्या रही है? इतना खर्च होना चाहिए था. 11,78,000 का. इसी आइटम को हम और एक तरीके से ला सकते हैं, आवर्स बेस्ड. और नाउ लिसन टू दिस. Absorbed overhead are for actual output. और absorbed overhead are for what? Actual output. तो actual output के लिए कितना खर्च होना चाहिए था? हमने निकाला 11,78,000 खर्च होना चाहिए था. Do you agree with me? Can I do a mistake? Absorbed overhead. In many questions I have seen in overheads, people take actual hours into, ये गलत है, मैच नहीं होगा. एब्सॉर्प्शन रेट ऑब्वियसली मैंने पर आवर लेना चाहिए बिकॉज मैंने आवर्स ले लिए. एक्चुअल आवर्स दिए कि मैंने? अच्छा, एक्चुअल आवर्स नहीं दिए क्वेश्चन में. एक्चुअल आवर्स लिखो, क्वेश्चन में ऐड करो. $1,14,000 आवर्स. 1,14,000 आवर्स क्वेश्चन में ऐड करो. हाँ, अब पब्लिक क्या करता है? 1,14,000 आवर्स इंटू 1 घंटे का सर 9.5 होना चाहिए ना सर. तो 1,14,000 घंटे का कितना होता है? बोलो. 10,83,333. खाली 83. ओके. 10,83,000 शुड बी ओवरहेड्स. दोनों मैच हो रहे क्या? नहीं. अब बोले मैच होने चाहिए ना. हाँ होने चाहिए. मैंने गलत फॉर्मूला यूज किया. मैंने पहले बोला लेट मी मेक अ मिस्टेक. दिस इज नॉट अ मिस्टेक. मेनी स्टूडेंट्स डू इन मेनी क्वेश्चंस. आईसीए आल्सो डज इन ओवरहेड चैप्टर, बट बाय द टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर कम्स अप दे बिकम इंटेलिजेंट. इसमें गलती क्या है मालूम है? एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इज व्हाट मीनिंग आई सेड, कितना खर्च होना चाहिए था फॉर एक्चुअल आउटपुट. बच्चों एक्चुअल आवर्स
आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, बट उसमें इफिशियंसी का इंपैक्ट भी आ चुका है। एक्चुअल आवर्स का जब प्रोडक्शन किया तुमने तो क्या हो सकता है, यू माइट बी मोर इफिशिएंट देन व्हाट वाज बजटेड, और यू माइट बी लेस इफिशिएंट देन बजटेड। तुमने तुम्हारे बजट के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट को कितना टाइम लगना चाहिए, अरे 1 यूनिट को कितना टाइम लगना चाहिए 4, तुमने टाइम कितना लिया 1,14,000। टेक्निकल कैलकुलेटर 1,14,000 डिवाइडेड बाय 31,000, रिस्पॉन्स चाहिए 3.67. What is it? What is 3.67 hours? Actually, you have taken lesser hours than what you budgeted for. So, what should happen? What should happen? While calculating absorbed overhead, you should not take actual hours. While calculating absorbed overhead, you should take standard hours. So बच्चों कॉन्सेप्चुअली, बट ये मिस्टेक आपको एग्जाम में करना पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड आवर्स का डेटा दिया ही नहीं तो। ठोक देने कैसे, absorbed overhead is equal to actual hours into absorption rate. But majority of the questions they will give you actual output. आउटपुट दिया तो यूज आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला। बच्चों इसी absorbed overhead को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। यही क्वेश्चन को लेकर मैं पहले अभी ओवरहेड चैप्टर में हम एनालिसिस कैसे करेंगे वो बताता हूं, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैसे करते हैं बताता हूं। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए क्या करना होता है बच्चों, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स आर नथिंग बट आवर्स दैट शुड हैव बीन टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट इनटू व्हाट, इनटू करो तुम एब्सॉर्प्शन रेट पर आवर। कितना है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, आउटपुट कितना हुआ तुम्हारा 31,000 ना, इंटू 4, 31,000 इंटू 4, इतने आवर्स तुमने लेने चाहिए, इंटू रेट पर आवर क्या निकलता हमने 9.5। अभी देखो कैसे मैच है पब्लिक, 11,70,078 आना चाहिए, ये करेक्ट है। इतना सिंपल है ये, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट अगेंस्ट दिस एक्चुअल कॉस्ट इज हाउ मच 10,85,000। ये एब्सॉर्ब्ड कॉस्ट बोला ना हमने, तो व्हाट इज एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड मतलब आउटपुट पे सी क्या होता रहता है, ओवरहेड्स कीप ऑन गेटिंग इंकर्ड, ओवरहेड कीप ऑन गेटिंग इंकर्ड जॉब बाय जॉब, और इन जनरल ओवरहेड्स आर नॉट इंकर्ड जॉब बाय जॉब। इफ यू नो ओवरहेड जॉब बाय जॉब, आई विल चॉप यू चॉप बाय चॉप। ओवरहेड्स आर इंकर्ड इन जनरल, दे आर नॉट जॉब बाय जॉब। तो आप क्या करते हो, जॉब बाय जॉब जो भी आपका एब्सॉर्प्शन का बेसिस है उसके हिसाब से आप ओवरहेड को एब्सॉर्ब करते हो। कहां पर, WIP अकाउंट में या रिस्पेक्टिव जॉब अकाउंट में। मैं अभी तीसरे चैप्टर को लिंक कर रहा हूं, कौन सा, कॉस्ट लेजर अकाउंट। मैंने जब सिखाया था तभी भी मैंने तीनों चैप्टर को लिंक किया था। यह है ओवरहेड अकाउंट, यह है WIP अकाउंट। WIP account is a representative of respective job. These are control accounts. Like debtors account ऐसा रहता नहीं है, there is a individual debtor, Mr. A, Mr. B, Mr. C. Debtors account is a representative of all your debtors. तो इसके बैकग्राउंड में दिख रहा है कि आपको बहुत सारे डेटर्स है। लाइक विराट कोहली इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, दिस इज विराट कोहली ऑफ जॉब अकाउंट्स। WIP अकाउंट के पीछे दिख रहा है तुमको जॉब नंबर 1295 3612 2950 दिख रहा है। सो ओवरहेड्स जब भी इंकर होगे, एंट्री क्या करोगे आप, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन सा सिस्टम है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप एंट्री क्या करोगे, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो यहां पे बैंक अकाउंट रहता नहीं है, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, GLA। तो ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट। अब बोले स्टोर्स लेजर कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स लेजर से आएगा टू वेजेस। वेजेस अकाउंट से क्या आएगा रे, इनडायरेक्ट वेजेस।
तो बच्चों आपके पास क्या है? आई ई, आई एम, आई डब्ल्यू। ये क्या है बच्चों? डेबिट साइड। बोलो। अरे डेबिट साइड इज व्हाट? ओवरहेड इंकर्ड। कह रहे तेरे को फिल्म फेंक रह गया है इधर का बेवड़ा। रिस्पॉन्स है ना? ना के नहीं है एक तो बेशरम। सो डेबिट साइड इज आई ई प्लस आई एम प्लस आई डब्ल्यू पुट टुगेदर इज ओवरहेड इंकर्ड, है ना? अब ओवरहेड एब्सॉर्ब हो गए। अभी रिस्पेक्टिव जॉब जो है उस जॉब का डायरेक्ट लेबर, उस ओके टू मटेरियल टू स्टोर्स लेजर टू वेजेस। ये डब्ल्यूआईपी अकाउंट में क्या आएगा? ये आएगा डीएम, ये आएगा डीडब्ल्यू। जॉब के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल हुआ, जॉब के लिए कितना डायरेक्ट वेजेस हुआ, ये तो मालूम है मेरे को। तो मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूं आइदर परसेंटेज ऑफ वेजेस और परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट और पर आवर बेसिस, पर यूनिट, वॉट एवर द बेसिस। हम क्या करेंगे? जॉब में, एक जॉब में कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गया मालूम है मेरे को, वो क्वांटिटी के लिए कितना ओवरहेड इंकर हुआ है ये नहीं मालूम। वो जॉब के लिए कितना ओवरहेड इंकर होना चाहिए था, हुआ है, होना चाहिए था अलग है। तो यहां पे क्या करूंगा? टू ओवरहेड अकाउंट। टू ओवरहेड अकाउंट जब करते हैं तब क्या आता है? ओवरहेड्स आएंगे। ये कौन से ओवरहेड आएंगे? ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। तो ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड यहां से यहां जाएगा। तो ये है तुम्हारा ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, हाँ ना? डब्ल्यूआईपी को। और डब्ल्यूआईपी अकाउंट से ये आइटम कहां पे चला जाएगा? एफजी चला जाएगा। बाय एफजी अकाउंट। सो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में आता है, राइट? सो इन ओवरहेड अकाउंट देयर विल बी बैलेंसिंग फिगर. That balancing figure is going to be either under or over absorption. पब्लिक बोलता है सर प्रीपेड ओवरहेड और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, इतना मारूंगा ना। ओवरहेड अकाउंट, अगर इफ देर इज अ प्रीपेड ओवरहेड, लाइक तुमने इंकर किया है, एक्सपेंस से ज्यादा पे गए, प्रीपेड ओवरहेड ऑलरेडी हम माइनस करेंगे बाय प्रीपेड ओवरहेड अकाउंट, यहां से लिखेंगे बाय प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग ओवरहेड अकाउंट, बट वी डोंट प्रिपेयर अ प्रीपेड ओवरहेड एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड अकाउंट इन जनरल लेजर। When a non-integrated system is there, हम GLA अकाउंट ओपन करते हैं और ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, वो छोड़ दो। व्हाट इज डेबिट साइड बच्चों? ये क्या है? ओवरहेड्स। ये क्या है? ओवरहेड एब्सॉर्ब। कौन सी साइड बड़ी हो सकती है? कौन सी भी साइड बड़ी हो सकती है। सो व्हाट एम आई सेइंग? डेबिट बैलेंस, ये डेबिट डीआर नहीं लिखना चाहिए बट इट्स अ कॉमन कन्वेंशन। डेबिट बैलेंस इन विच अकाउंट? ओवरहेड अकाउंट। बोलो कोरवाल जी, मतलब बोलिए इसका। डेबिट बैलेंस का मतलब बोलिए आराम से अपना टाइम लीजिए, गलत गए तो भी चलते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? डेबिट साइड इज बिगर देन क्रेडिट साइड। तुमने ओवरहेड इंकर किया 15 लाख का, एब्सॉर्ब हुआ 12 लाख का, so this is an example of under absorption. What he said is absolutely right. There is an under absorption. You are absorbed lesser than what you have incurred. It's so simple. So this is under absorption. इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? तुमने खर्चा किया है 15 लाख का, लेकिन जॉब्स में, रिस्पेक्टिव जॉब में नहीं, रिस्पेक्टिव जॉब में मात्र 12 लाख रुपया इंक्लूड किया गया है। 3 लाख रुपए का खर्चा जो है वो क्या करना चाहिए? रिस्पेक्टिव जॉब को जाना चाहिए। कुछ समझा गया? अंडर अब्सॉर्प्शन है। डेबिट बैलेंस मींस अंडर अब्सॉर्प्शन। अब बच्चों अंडर अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है तुमको समझा गया? चिराग, वो वाला चिराग पीछे वाला, टेल मी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में इसको क्या बोलेंगे?
तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में ज्यादा बिजी थे तुम, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूं। वो बाजू वाले डायरेक्ट मास्क के ऊपर कर ले बोलो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में इसको क्या बोलेंगे? यही अंडर एब्सॉर्प्शन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में जाके हम बोलते थे एडवर्स वेरिएंस। इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये अंडर एब्सॉर्प्शन को हम एडवर्स जाके बोलते थे। क्यों रे एडवर्स जाके बोलते थे? कॉमन सेंस लगाओ ना। खर्चा कितना होना चाहिए था? 12, और खर्चा हुआ कितना है? 15 लाख का। सो यू शुड हैव इंकर्ड 12 lakh, but you have incurred 15 lakh. So it is adverse variance. As simple as that. अब सिर्फ फर्क क्या पड़ने वाला है बच्चों? मैं बोलता हूं क्लास में 200 बच्चे हैं, उसमें से 80 मेल है, 120 फीमेल है। मैं बोलता हूं क्लास में 200 बच्चे हैं, उसमें से 50 हॉस्टलाइट है, 150 लोकलाइट है। क्या किया मैंने? वही 200 बच्चों को अलग अलग एंगल से एनालाइज किया। तो हम क्या कर रहे हैं? ओवरहेड चैप्टर में हम एनालाइज करेंगे अंडर एंड ओवर एब्सॉर्प्शन, एंड देन उसका ट्रीटमेंट करेंगे यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट एंड ब्ला 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 बोलता हूं। एंड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर उसका एनालिसिस फर्स्ट हम क्या करेंगे? ओवरहेड वेरिएंस, एडवर्स एंड फेवरेबल, और उसका एनालिसिस इफिशिएंसी, वॉल्यूम, कैपेसिटी, कैलेंडर, ऐसा करने वाले हैं। तो प्लीज आप, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन ओवरहेड अकाउंट मींस क्रेडिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, यू आर एब्सॉर्ब्ड मोर देन व्हाट यू आर इनकर्ड। दोनों डेंजरस है। क्यों दोनों डेंजरस है? ओवर एब्सॉर्प्शन मतलब तुमने कस्टमर को ज्यादा चार्ज, मतलब तुमने कॉस्ट में ज्यादा कंसिडर किया। सिंस यू कंसिडर मोर इन कॉस्ट, यू माइट हैव चार्ज मोर टू कस्टमर, you might have lost a customer because you might have given a quotation to him higher than what he was perceiving or what competitors might have given. Under absorption matlab your customers might have loved your product. Why? You gave them lower quotation, assuming costing and pricing are linked. Costing and pricing may be linked, may not be linked. हम pricing discuss नहीं कर रहे, हम costing discuss कर रहे हैं। Over absorption का मतलब क्या है? फेवरेबल वेरिएंस। कैसे फेवरेबल वेरिएंस? कितना ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड खर्चा होना चाहिए था 50 लाख का, तुमने खर्च किया 38 लाख का। राइट नाउ आई होप यू आर क्लियर। सो अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन, हाउ डू यू कैलकुलेट एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड? एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड हाउ डू यू कैलकुलेट? बोलो। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आर बेसिकली नथिंग बट एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्सॉर्प्शन रेट, और आवर्स बेसिस पे क्या? तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एब्सॉर्प्शन रेट। ऑब्वियसली एब्सॉर्प्शन रेट अगर आवर्स लिया तो पर आवर होना चाहिए, यूनिट्स लिया तो पर यूनिट होना चाहिए, उसमें तो कोई मतलब ब्रेन का जरूरत नहीं है। आर यू क्लियर ऑन दिस? तो अब मैं क्या करता हूं? ओवरहेड चैप्टर के हिसाब से एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद जाके मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट बोथ द थिंग्स विल बिकम एक्सट्रीमली क्लियर। तो गिव द हेडिंग अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन, यूए ओए, यूए अंडर एब्सॉर्प्शन एनालिसिस एज पर accounting angle. This accounting angle is relevant for which chapter? Overheads chapter. दो एंगल से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो ओवरहेड चैप्टर में देखो क्या करना है। हम पूछेंगे पहले व्हाट इज द रीजन फॉर अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन। यू हैव टू आइडेंटिफाई रीजन फॉर अकाउंटिंग एंगल। हम क्या पूछ रहे? क्यों हुआ ये अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ, लेकिन क्यों हुआ भाई? तो हम बोलते हैं नॉर्मल रीजंस की वजह से हुआ। नॉर्मल रीजंस का एग्जांपल, लेट्स से प्राइस इंक्रीज हो गया,
नॉर्मल रीजंस ऑब्लिक अनअवॉइडेबल रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब बजट बनाया था तो प्राइस एक्स था ओवरहेड का, जब एक्चुअल में ओवरहेड इंकर हुए तो प्राइस वाई हो गया, और ये कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं था, तो प्राइस लेवल चेंज फॉर एग्जाम्पल इज अनअवॉइडेबल। प्राइस लेवल चेंज हो गया, दैट्स व्हाई एक्चुअल ओवरहेड्स आर डिफरेंट देन एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। क्वाइट सिंपल ना? There could be some reasons which are within the control, there could be some reasons outside your control. राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा हूं? एबनॉर्मल रीजंस। बच्चों ये एनालिसिस सिर्फ किसके काम का है? अकाउंटेंट के काम का है। तो ये एनालिसिस कौन से चैप्टर में काम आएगा? कॉस्ट लेजर अकाउंट। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, उसमें आपको ओवरहेड्स अकाउंट का जो बैलेंस है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो तब जाके ये एनालिसिस काम में आएगा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट एंगल से आपको आंसर्स देगा। एबनॉर्मल रीजंस मतलब देयर वाज नेचुरल कैलामिटी, यू कुड हैव अवॉइडेड इट। अब बोले हाउ कैन वी अवॉइड अ नेचुरल कैलामिटी? बाय टेकिंग ए इंश्योरेंस, है ना? एबनॉर्मल का एनालिसिस बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल रहता है एबनॉर्मल। ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल, transfer to costing P&L. Do you understand transfer to costing P&L? Whatever is under oblique over absorption, whatever is under oblique over absorption due to abnormal reason, simply pick it up and transfer to costing P&L. समझा गया रे? बट नॉर्मल रीजंस के लिए हमारे पास अलग मेथड है, इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री रेट मेथड। क्या बोला मैंने? सप्लीमेंट्री रेट मेथड। सो व्हेन वी एनालाइज ओवरहेड्स, we identify reason. Is it a normal reason or is it an abnormal reason? If it is abnormal, just pick it up and throw it in dustbin. Costing P&L. कॉस्टिंग पी एंड एल। सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? एडिशनल। आपने ऑलरेडी ओवरहेड एब्सॉर्ब किए हैं कुछ एक रेट पे, अब हम एक और एडिशनल रेट निकालेंगे और एक्स्ट्रा एब्सॉर्ब करेंगे अगर अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है तो, और अगर ऑलरेडी ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ है तो हम उसमें से कुछ निकाल लेंगे। सो नाउ टेल मी, whenever you do absorption, what happens? WIP account gets debited and overhead account gets credited. absorption का एंट्री क्या था? absorbed overhead का एंट्री देखो, absorbed overhead का एंट्री WIP account debit to overhead account, WIP account debit to overhead account. Are you clear on this? Thank you. So overhead account debit to WIP account, sorry, WIP to overhead. WIP में चला गया, WIP से जाएगा किधर? फिनिश गुड्स में जाएगा, फिनिश गुड्स से किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर सेल हो गया तो अब देखो 10,000 यूनिट्स हमने चालू किए थे बनाने के लिए। कितने यूनिट चालू किए थे? फिल्टर देखने का आपको 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए चालू किया था, उसमें से FG 8,000 बन गया, 2,000 अभी भी WIP में ही है, 2,000 WIP में, 8,000 किधर गया? फिनिश गुड्स में गया। वो 8,000 में से 6,500 सेल हो गया। अब मैं सप्लीमेंट्री रेट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उधर 5-6 लाइन छोड़ रहा हूं। देखो, यूनिट्स, जॉब स्टार्टेड, जॉब क्वांटिटी कितना था? 10,000 लेस स्टिल इन WIP, स्टिल इन WIP कितना है? 2,000। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया 10,000 यूनिट का, उसमें से ससुरा 2,000 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो देयरफॉर FG कंप्लीटेड इज 8,000 यूनिट्स, FG कंप्लीटेड इज 8,000 लेस स्टिल इन स्टॉक, स्टिल इन स्टॉक कितना है? 1,500। सो देयरफॉर सोल्ड कितना है? 6,500 है। अज्यूम करो, मैं बोल रहा हूं यहां पर कुछ अमाउंट है ओवरहेड इंकर्ड,
ओवरहेड इंकर्ड थे ₹19 लाख, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, और हमने एब्सॉर्ब किए थे ₹17,10,000। सो बोलो मुझे अंडर एब्सॉर्प्शन का अमाउंट कितना है? 1,90,000 का अंडर एब्सॉर्प्शन है, राइट? 190 का अंडर एब्सॉर्प्शन है। सो मेरा क्वेश्चन ये है, ये 190 किसके ऊपर एब्सॉर्ब होना चाहिए था? वो 10,000 के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर होता है, WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% नहीं है। ये 19 लाख किसके लिए खर्च हुआ? गुड्स के लिए। बट डोंट से 19 lakh is spent for 10,000 because the degree of completion of this 2,000, this 8,000. ओके, ये 10,000 का ब्रेकअप क्या है? 2,000 WIP में, 1,500 FG में, और 6,500 सेल हो गया। उन सारों का डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है क्या? तो कॉस्ट हर एक के ऊपर सेम इंकर हो गया होगा क्या? नहीं। तो हमें करना क्या पड़ता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ढूंढना होता है। जो भी खर्चा तुम करते हो वो, या जो भी एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन या खर्चा किसके लिए होता है? प्रोडक्शन के लिए। बट प्रोडक्शन की फिजिकल क्वांटिटी मत देखो, प्रोडक्शन की इक्विवेलेंट क्वांटिटी देखो। क्यों? ये 2,000 यूनिट्स के लिए जो खर्चा होगा और यहां के 2,000 यूनिट्स के लिए जो खर्चा होगा वो सेम नहीं होगा। जो गुड्स सेल हो गए वो 2,000 के लिए जो ओवरहेड लगे, और जो WIP में 2,000 है उसके लिए जो ओवरहेड लगे वो सेम नहीं है। क्यों? इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है, तभी जाके बेचा ना। जो FG में है उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? 100% है। लेकिन जो WIP में है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 नहीं हो सकता है। क्यों? अगर वो 100 है तो WIP कैसे है? उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% है। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1,400, इधर 1,500, इधर 6,500, टोटल आ गया 9,400। समझा क्या? 9,400। 9,400 क्या रे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी में बहुत बड़ा गैप है। समझा क्या रे? देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी। ओवरहेड्स आर टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा अंडर अब्सॉर्प्शन कितने का है? 1,90,000 का अंडर अब्सॉर्प्शन है। तो ये सारा का सारा नॉर्मल रीजन की वजह से, प्राइस लेवल चेंज। तो ये हमें ट्रांसफर करना है किसके ऊपर? आउटपुट के ऊपर। तो हम ढूंढेंगे सप्लीमेंट्री रेट, एडिशनल रेट। तो हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट is equal to supplementary rate per unit is equal to, very simple, under absorption due to normal reasons. Due to what? Normal reasons. ये है हमारा अंडर absorption due to what? Normal reasons divided by equivalent units. तो हम क्या कर रहे हैं? 1,90,000 का अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ 9,400 यूनिट्स के लिए इक्विवेलेंट। तो हम सप्लीमेंट्री रेट लगाकर रिस्पेक्टिव अकाउंट को डेबिट करेंगे। बोलो रेट कितना है? 20.21 पर यूनिट, राइट? तो हम क्या करेंगे? डेबिट टू WIP, हम एंट्री पास करेंगे, WIP अकाउंट डेबिट। क्यों? अंडर एब्सॉर्प्शन मतलब देयर इज अ डेबिट बैलेंस। इन विच अकाउंट? ओवरहेड अकाउंट। WIP अकाउंट डेबिट, FG अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों? जो यूनिट्स ऑलरेडी सेल हो गए, ओ कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे मतलब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, उससे सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट प्रॉफिट यू ऑलरेडी शोन, एज कंपेयर टू व्हाटएवर प्रॉफिट यू ऑलरेडी। WIP अकाउंट कितना आएगा रे? क्वांटिटी कितना था? इक्विवेलेंट क्वांटिटी, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में लेने का है 1,400 इंटू 20.21, 1,500 इंटू 20.21। ओके, WIP का कितना है? 28,294। FG 30,315। कॉस्ट ऑफ सेल्स
units were 6,500 into 20.21, 1 lakh 365. ओके, 2 ओवरहेड अकाउंट, थोड़ा सा राउंडिंग आउट डिफरेंस आएगा, कितना आ रहा है टोटल? ये टोटल ले लो, इट्स ओके, 974, 26 रुपीज का डिफरेंस है, दैट इज राउंडिंग आउट डिफरेंस. सो दैट इज हाउ यू ट्रीट ओवरहेड्स अंडर अब्सॉर्प्शन. ओवर अब्सॉर्प्शन है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा एंट्री करने का. Okay, this was due to normal reason. If there is something due to abnormal reason, where will you debit? You will debit costing profit and loss account. So WIP account debit, FG account debit, cost of sales account debit. उसके साथ साथ हम और एक डेबिट मारेंगे, और एक डेबिट किधर मारेंगे? कॉस्टिंग P&L को डेबिट मारेंगे. क्यों कॉस्टिंग P&L को डेबिट मारेंगे? abnormal है ना वो. कॉस्टिंग P&L को डेबिट मारेंगे because it is abnormal. Are you clear? So come up. If under oblique over absorption is due to normal reason, find out supplementary rate. SR is equal to OA or UA due to what? Normal reasons divided by equivalent quantity, equivalent units. खत्म. ये सप्लीमेंट्री रेट आएगा. अगर यूए है तो डेबिट रिस्पेक्टिव अकाउंट एंड क्रेडिट ओवरहेड अकाउंट, क्योंकि मुझे ओवरहेड अकाउंट बंद करना है ना. अभी तक मैंने क्या बोला था? ओवर यूए का मतलब क्या है? ओवरहेड अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट. समझा करे? तो अगर आपने डेबिट किया, WIP को डेबिट किया, FG को डेबिट किया, है ना, यू डेबिट व्हाट? WIP अकाउंट टू व्हाट? ओवरहेड अकाउंट. ऐसा आप डेबिट करते, तो आपने क्या किया? प्रॉफिट कम किया. कैसे प्रॉफिट कम किया? जो कॉस्ट ऑफ सेल्स था उसको हमने एडिशनली डेबिट कर दिया. वी डेबिटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स एडिशनली, सो आवर प्रॉफिट विल कम डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्सॉर्प्शन. एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट कम्स डाउन. ये लिखो नीचे, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूए प्रॉफिट विल कम डाउन. As a result of treatment of OA, profit will go up. As a result of treatment of UA, profit will go down. As a result of treatment of OA, profit will go up. I hope everyone is clear on this. Profit will go up and profit will go down. ये कौन से चैप्टर के हिसाब से एनालिसिस चल रहा है? ओवरहेड चैप्टर के हिसाब से. ओ, ये स्टेप 6, 7, 8 मैंने बहुत सारे स्टेप मिक्स कर दिया. जब सिखाया होगा तो मैंने स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, स्टेप 7 कैलकुलेशन ऑफ अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, स्टेप 8 ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन. ऐसे मल्टीपल स्टेप्स लिख के दिए होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्रॉडली मैंने आपको बोला पूरा चैप्टर आपका 1 सेकंड में आपके सामने स्क्रीन पे आना चाहिए. आ गया क्या स्क्रीन पे? ओवरहेड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, absorption, under oblique over absorption. Chapter khatam. You don't need to study for numerical questions of overhead chapter. You can easily solve any damn numerical question. So ये आ गया सप्लीमेंट्री रेट. कॉस्टिंग P&L को कुछ करने का ही नहीं. उस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, ट्रांसफर टू अंडर अब्सॉर्प्शन है तो क्या करोगे? कॉस्टिंग P&L टू ओवरहेड्स. ओवर अब्सॉर्प्शन है तो ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L. There is one more method which is nothing actually. Amount of UA OA is so small that I don't want to do analysis. So we carry forward under oblique over absorption. Right now मैंने क्या किया? ट्रीटमेंट किया ना उसका, आइदर उसको कॉस्टिंग P&L को डेबिट किया या सप्लीमेंट्री रेट यूज किया. मैंने सप्लीमेंट्री रेट यूज करके हमने क्या किया? इसके बाद क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री रेट के बाद डेबिट और क्रेडिट as the case may be. Debit or credit to which account? WIP account, comma FG account, comma cost of sales account in ratio of equivalent units. Don't forget to take equivalent units. By mistake, if you take a physical units, you are over. You are over there and there itself. Are you crystal clear about this?
अरे यूट्यूब पब्लिक, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको चैट करने नहीं, रिस्पॉन्स देने नहीं सिखाया कर, क्या पब्लिक है रे? कल से यूट्यूब बंद करना चाहिए। क्या पब्लिक है यार, मतलब एक कभी रिस्पॉन्स ही नहीं, घर पे ऐसे ठल्ले जैसे बैठे हुए हैं बस। हाँ मतलब आई रियली नॉट अंडरस्टूड द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। रिविजन चाहिए था। तुम ऑब्जर्व कर रहे हर रोज, पहले दिन बहुत मस्त पे के आ गए, वापस 7 बजे उठा। तुमने फिजिकल भी देखा होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम है तो तुम लोगों को एग्जाम नहीं क्या, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका एग्जाम नहीं क्या? बट द प्रॉब्लम इज इन सीए कोर्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डोंट वांट टू पास। द पीपल फेल इन सीए कोर्स बिकॉज दे प्लान टू फेल। These are the words and these will not change forever. You plan to fail, you don't fail. By not studying, you plan to fail. जाने दो। So, अंडर ऑब्लिक ओवर absorption ये हो गया आपका, कौन से रीजंस की वजह से हो गया? नॉर्मल रीजंस एज वेल एज एबनॉर्मल रीजंस की वजह से हो गया। ये कौन सा चैप्टर के हिसाब से हुआ? ओवरहेड्स। आपको अगर अमाउंट नीचे लिखो, if amount of UA oblique OA, amount of UA oblique OA is very small, then we carry forward. We carry forward what? Amount of UA OA without any analysis. Without any analysis. क्या बोल रहे? तो चैट हो रहे करने वालों, इधर चैट दिख नहीं रहा है क्या इधर? क्यों? मरने दो। सो वाई फालतू में क्या क्या गाली दिया, चल। विदाउट एनी एनालिसिस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अंडर ऑब्लिक ओवर अब्सॉर्प्शन का एनालिसिस हमने ये कौन सा एंगल से किया? अकाउंटिंग एंगल से किया। अब मैं जा रहा हूं बिजनेस एंगल से। तो लिखो, गिव द हेडिंग, एनालिसिस ऑफ यूए ऑब्लिक ओए फ्रॉम एमजीएमटी एंगल, फ्रॉम मैनेजमेंट एंगल। ये कौन सा चैप्टर के लिए रिलेवेंट है बच्चों? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से के लिए रिलेवेंट है ये। कौन सा वाला? मैनेजमेंट वाला। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। नेक्स्ट सुन लेना अब। So analysis of under oblique over absorption from which angle? Management angle. Management is not interested in knowing how much is normal, abnormal and what is the journal entry for it. समझा क्या? वो overhead और journal entry। अब मुझे चाहिए बिजनेस एंगल से। वो जो अंडर ऑब्लिक ओवर अब्सॉर्प्शन है ना बच्चों, इट इज नथिंग बट ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, सॉरी माय मिस्टेक, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट अंडर ऑब्लिक ओवर अब्सॉर्प्शन। अब वो वेरिएबल ओवरहेड होने दो या फिक्स ओवरहेड होने दो, गॉडफादर इज सेम। उसके बच्चे कैसे पैदा करने वो मेथड अलग अलग है। देखो, नहीं समझा। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये वेरिएबल ओवरहेड होने दो या फिक्स ओवरहेड होने दो, ये फॉर्मूला सेम है। दिस इज नथिंग बट यूएओए, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कोई ओवरहेड क्या, मटेरियल कॉस्ट होने दो, लेबर कॉस्ट होने दो, ओवरहेड होने दो, या और कोई भी नहीं, और कोई हो नहीं सकता। सो कोई भी कॉस्ट का वेरिएंस हो, ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चों? कितना खर्चा होना चाहिए था फॉर एक्चुअल आउटपुट।
यार ये कैसा गंदा अमेरिकन कंसेप्ट लाके रखा है यार इधर ना, सिंपल कंसेप्ट। अच्छा इसमें गर्म है इसमें ठंडा है, ओके ऐसा किया उसने, ठीक है। लिसन अप, पानी है, पानी का प्रॉब्लम नहीं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग बट एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। तो चलो अभी तुम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल ओवरहेड होने दो या फिक्स ओवरहेड होने दो, फॉर्मूला सेम है, अमाउंट अलग अलग रहेंगे। तो एब्सॉर्प्शन रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एंड एब्सॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स ओवरहेड कांट बी सेम। तो बोलो फॉर्मूला बोलो। आर्स आउटपुट बेसिस पे करना है तो क्या करूंगा मैं, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अरे ये स्टैंडर्ड रेट मतलब एब्सॉर्प्शन रेट है, ये बजटेड बेसिस पे निकाला हुआ है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट के लिए आपको टाइम पास करना है तो कुछ भी करो, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। क्यों टाइम पास करते हो, समझा ना? विच वन इज करेक्ट, बोथ। ये कौन सा बेसिस पे हुआ, आउटपुट बेसिस पे हुआ। देयर इज वन मोर फॉर्मूला, ऑन व्हाट बेसिस, आवर्स बेसिस पे और एक फॉर्मूला है, और एक्चुअल आवर्स नहीं लेने का है, स्टैंडर्ड आवर्स लेने का है, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। माय मिस्टेक, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इन माइनस व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट। वो तो सेम ही रहेगा। ये ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है बच्चों, यूए और ओए। यूए आ गया तो एडवर्स वेरिएंस, ओए आ गया तो फेवरेबल वेरिएंस। व्हेन डू यू से इट इज फेवरेबल, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेसर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। हाँ लेकिन अब इसका एनालिसिस जो है ना वो अलग है, ये एनालिसिस नहीं है, ये यूए ओए ये सिर्फ लैंग्वेज अलग किया। इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल। अब हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे किसके हिसाब से। ओवरहेड कैन बी ईदर वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड कैन बी फिक्स ओवरहेड। अब बोलेंगे सर ओवरहेड कैन बी सेमी वेरिएबल ऑल्सो। नो, whatever is a semi variable cost for the purpose of standard costing or for the purpose of analysis, we always bifurcate semi variable costs into variable and fixed using methods. The best method is regression method. So using a regression method we bifurcate semi variable costs into variable and fixed. So before I explain analysis of variable and fixed, I must explain how to put up semi variable cost. तो अगर देखो, देखना रिग्रेशन मेथड आएगा नहीं कभी एग्जाम में, आ सकता है। हाउ टू सेपरेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कितने मेथड्स है उसके, ब्रॉडली स्पीकिंग मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, इसके अलावा भी बाकी मेथड्स है बट उसमें मैथमेटिक्स नहीं है, वो जस्ट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स ऑब्जर्व करके आपने डिसाइड कर लिया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड है बच्चों, रिग्रेशन, हाई लो मेथड, और तीसरा मेथड मैं लिखता हूं, कुछ करने वाला नहीं हूं मैं उसमें, एनालाइज, एनालाइज वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स। रिग्रेशन मेथड में क्या करते हैं हम, रिग्रेशन मेथड में बीटा ऑब्लिक स्लोप। अब बोले ये क्या है, ये तुम्हारे कॉस्टिंग के सिलेबस में, कुछ बच्चा यूट्यूब पे देख रहा होगा, मालूम नहीं है तो बेटा ये सिलेबस में है, फर्स्ट चैप्टर में बाय द वे। सो बीटा ऑब्लिक व्हाट slope is equal to variable cost and y-intercept is equal to fixed cost. अब बोले क्या था सर, कौन से लैंग्वेज में लिखा तुमने ये? अगर तुमने क्वांटिटी उसको x बोला और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को
y बोला, ऐसे क्वांटिटी आपने यहां पे लिखे बहुत सारे, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहां पर बहुत सारे लिखे आपने। तो क्या आ गया बच्चों, आपके पास डेटा है, y एक्सिस इज कॉस्ट, x एक्सिस इज क्वांटिटी। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, स्कैटर डायग्राम आता है सबसे पहले, और उस स्कैटर डायग्राम से एक लाइन ड्रॉ करते हो आप, उसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। ये एफएम में भी सिखाया था, एफएम में भी ये बीटा था आपके। तो उस रिग्रेशन लाइन का बीटा जो है, सी इफ आई टेक x axis quantity, y axis cost, and I draw, quantity can't be negative, so, and cost also can't be negative, so entire data will be in the first quadrant only। और इसके थ्रू हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट या रिग्रेशन लाइन या लीस्ट स्क्वायर्स मेथड करके लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप वेरिएबल कॉस्ट होता है। स्लोप यहां पर आता है, यहां पर ऐसे जो करते हैं ना उसको स्लोप बोलते हैं, और ये जो है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। अब बोले सर निकालेंगे कैसे, सर वो बोलो सर हमें बाकी लॉजिक छोड़ दो। तो अगर आपको स्लोप निकालना है बच्चों, स्लोप इज नथिंग बट अ बीटा। स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, बीटा। सो कोवेरियंस बिटवीन x and y upon variance of x is a slope. Am I right? बाउंसर आएगा नहीं है, डरो मत, नहीं आएगा। स्लोप इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। तो आप बोले सर अभी ये बताओ कोवेरियंस कैसे निकालने का सर। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज अ कोवेरियंस। डिवाइड बाय n होता है, लेकिन मैं नीचे भी n डिलीट करने वाला हूं। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसमें भी डिवाइड बाय n होता है, न्यूमरेटर में भी डिवाइडेड बाय n होता है, दोनों n मैंने कैंसल किए, तो ये आ गया स्लोप। ये बेसिकली जिन गधों को अभी भी नहीं समझा, ये बी वाई एक्स है, y on x सी ए फाउंडेशन। तो ऐसे जाके वेरिएबल कॉस्ट आता है। और एक बार ये आ गया तो आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो बाय राइटिंग द लाइन इक्वेशन। व्हाट इज द लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप को m बोलते हैं, आपके y मतलब y बार लिखने का, इस इक्वेशन को चेंज करने का। y बार इज इक्वल टू m एक्स बार प्लस सी। y इंटरसेप्ट मतलब c होता है, तो क्या करने का है, y बार। ऑनलाइन पब्लिक जो किसी दूसरे सीखा होगा तो मालूम नहीं होगा तो कर लेना, ये बजाने का इंस्टीट्यूट को तो इंस्टीट्यूट ऐसा ही बजा सकता है। y बार माइनस एम एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, c। ये c क्या है, फिक्स कॉस्ट। ये है आपकी फिक्स कॉस्ट। समझा क्या रे बच्चों? सो वेरी गुड, टू गुड कॉन्सेप्ट। सो सेमी वेरिएबल ये ऐसे बाइफरकेट किया जाता है, एक मेथड है, बट जो पॉपुलर मेथड आपके एग्जाम में आएगा वो ये राइट हैंड साइड घटिया वाला मेथड है, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, पर यूनिट पर आवर वॉट एवर, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, चेंज इन क्वांटिटी और आवर्स। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और फिर सब्स्टिट्यूट दिस वेरिएबल कॉस्ट इन एनी ऑफ द इक्वेशन to get the, see, semi variable cost is equal to what, SVC is equal to variable cost plus fixed cost। आपके पास क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम रहेगा, क्वांटिटी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको मालूम है, फिक्स कॉस्ट आप क्या करोगे, निकाल लोगे। ये मालूम है आपको, क्वांटिटी मालूम है, सी यू नो एवरीथिंग ना। एसवीसी आपको मालूम रहेगा, क्वांटिटी मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लिया। बट इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हाईएस्ट क्वांटिटी एंड लोएस्ट क्वांटिटी को ही कंसीडर करते हैं, बीच के सारे लेवल्स भाड़ में जाए।
बट अंडर रिग्रेशन मेथड हम सारे लेवल्स को कंसिडर करते हैं। रिग्रेशन वाला क्वेश्चन आपके कॉस्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में, बट पूछा नहीं है अब तक। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिखाऊं ना। तो मैंने क्या बोला, कम बैक, एनालिसिस ऑफ ओवरहेड इज गोना बी डन इनटू वेरिएबल एंड फिक्स। वेरिएबल ओवरहेड हो या फिक्स ओवरहेड हो, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग बट एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कैन बी कैलकुलेटेड ईदर आउटपुट बेसिस और आवर्स बेसिस। दोनों याद रखना जरूरी है। क्यों याद रखना जरूरी है? एग्जाम में कुछ भी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब मैं पहले आपको वेरिएबल ओवरहेड बताता हूं। वेरिएबल ओवरहेड बहुत आसान है कंपैरेटिवली। फिक्स ओवरहेड के लिए बहुत मुश्किल है, टाइम भी लगेगा, क्योंकि उसके लिए कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस समझना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग फॉर्म, कैपेसिटी रेशो, इफिशियंसी रेशो, वो हम कल करेंगे। उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड याद है, बहुत सारे ऐसे अतरंगी एक्टिविटी रेशो था, इफिशियंसी रेशो था, कैपेसिटी अलग अलग तरीके से इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करता था। उसमें ओरिजिनल बजटेड आवर्स, रिवाइज बजटेड आवर्स, पागलपन है। किसमें? फिक्स ओवरहेड में। फिक्स ओवरहेड के लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट वेरिएबल ओवरहेड। तो गिव द हेडिंग, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये बहुत सिंपल है। वेरिएबल ओवरहेड वेरी विथ रेफरेंस टू आउटपुट और विथ रेफरेंस टू आवर्स, है ना। गॉडफादर वेरिएंस कैसे था रे बच्चों? गॉडफादर वेरिएंस देखो, आवर्स बेस पे हो सकता है या यूनिट बेस पे हो सकता है। मैं पहले आवर्स बेस पे लिखता हूं, ऊपर लिखो इधर आवर्स बेस्ड। बोलो, गॉडफादर वेरिएंस इज इक्वल टू VOH, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू, बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसा आएगा? SH इंटू SR, स्टैंडर्ड आवर्स, इट इज नॉट एक्चुअल आवर्स, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा? एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ये एनालिसिस नहीं है, ये गॉडफादर हो गया। इसके 2 ही बच्चे मात्र, फिक्स ओवरहेड में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए। वेरिएबल ओवरहेड में बच्चे ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इट वेरीज विथ रेफरेंस टू आउटपुट। तो हम नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इफिशियंसी वेरिएंस and what? Expenditure variance or rate variance, whatever the word you use, expenditure. तो बच्चों डिफरेंस किसकी वजह से हो सकता है? रेट, प्राइस लेवल चेंजेस। दिस इज व्हाट? प्राइस लेवल चेंज। एंड दिस इज इफिशियंसी, द वे वर्कर्स वर्कड इन अ फैक्ट्री। इफिशियंसी इज अ डिफरेंस इन आवर्स, SH minus AH. When you are analyzing efficiency, keep price to be constant. So how do you keep a price to be constant? It is SR, but SR will be obviously per hour. क्यों? hours based लिखा है मैंने. Expenditure variance कैसे करोगे बच्चों? It is a difference in rate. So standard rate minus actual rate. आएगा. Standard rate minus into actual hours. क्यों? पूरा कॉन्सेंट रखना है आपको. ये कौन सा बेसिस पे था? आर्स बेस. देखो तुमको याद नहीं आ रहा होगा ना. कहां पे गया हो? चैप्टर किधर गया? हाँ ये देखो, अपने प्रॉब्लम्स थे उसके पहले ये डिटेल में हमने किया था इसको. ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. देखो स्टैंडर्ड रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड. स्टैंडर्ड रिकवर्ड कैसे क्या? SH इंटू SR और एक्चुअल आउटपुट इंटू ओवरहेड रेट पर यूनिट. ये गॉडफादर हो गया. इसके बच्चे देखो, ये फिक्स ओवरहेड का बच्चा है. ये वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या किया था मैंने? एक्चुअल आवर्स लिया इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर, दैट इज SR. SR माइनस AR. चेक करो हमने SR माइनस AR किया क्या? SR माइनस AR किया क्या? हाँ, SR माइनस AR इंटू एक्चुअल आवर्स या क्या? दूसरा देखो, इफिशियंसी वेरिएंस SH माइनस AH, that is the difference in hours into rate per hour. Are you clear?
कम डाउन, क्या कम डाउन करने का भी, ये हो गया आवर्स बेस। वापस इसको कॉपी करो, चलो एनालिसिस ऑफ, एग्जाम में कौन सा आएगा बोल नहीं सकते, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इनटू ब्रैकेट आउटपुट बेस। लास्ट पॉइंट है, फिक्स ओवरहेड हम कल करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना आएंगे तो क्वेश्चन 1 में आएंगे, 1 या 10 मार्क, 10 मार्क्स, एंड यू मस्ट नॉट मिस अ सिंगल मार्क ऑन दिस चैप्टर्स। बहुत ज्यादा भर भर के मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम। बाय द वे अपने पास 99 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं अभी के टाइम, हमने एडवर्टाइज नहीं किया, मतलब सिर्फ बोल रहा हूं आपको, मतलब कॉस्टिंग के मार्क्स चाहिए तो 90 के ऊपर के तो मेरे को मालूम ही नहीं, वो अगली बार बुक में प्रिंट करने चाहिए। तो स्टूडेंट शुड नॉट ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट। यू वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, आउटपुट बेस कर रहे हैं ना, एसएच के जगह पे क्या लेंगे, एसओ नहीं लेना है, इट इज एक्चुअल आउटपुट। मेनी स्टूडेंट्स मेक दैट मिस्टेक। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालते हो। अब एक गधे, स्टैंडर्ड आउटपुट इज आउटपुट दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आउटपुट इज आउटपुट दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन एक्चुअल आवर्स। हमें स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं लेना है, हमें लेना कौन सा है, एक्चुअल आउटपुट ही लेना है, माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। ये रेट कौन सा होगा, रेट पर यूनिट रहेगा ऑब्वियसली। हाँ लिख रहे अभिषेक, इनको कोई भरोसा नहीं है, एक्चुअल रेट पर यूनिट, ये ओ आर हो गया, एक्चुअल ओपी, एक्चुअल आउटपुट, समझा क्या रे। अब इसके 2 बच्चे, क्या नाम है इन बच्चों के, इफिशियंसी वेरिएंस, वही बच्चे। मैं पर्पस लिख रहा हूं, इमेजिन, ऑब्जर्व, देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज एंड राइट हैंड साइड इट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इफिशियंसी वेरिएंस मतलब कितना आउटपुट होना चाहिए था, कितना आउटपुट आया। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस। दिस इज इफिशियंसी, कितना आउटपुट आना चाहिए था और कितना आउटपुट आया है, इनटू व्हाट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज द ओनली फॉर्मूला हियर विच इज डिफरेंट। इट इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, एक्सपेंडिचर के लिए डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट लेता है, नहीं, इट इज नॉट अ डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। डिड यू नोटिस इट हियर, दिस वाज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। व्हाट डिड आई, यही एक फॉर्मूला अतरंगी है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये आगे आपका कितना खर्च होना चाहिए था, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। आउटपुट नहीं है, अरे रुपीज है ना, एक्चुअल ऑब्वियसली वेरिएबल ओवरहेड्स देना, क्योंकि मैं ऊपर वेरिएबल ओवरहेड लिखा हूं। ये एक फॉर्मूला को सिर्फ मार्क करके रखना, बाकी सारे के सारे फॉर्मूला लॉजिकल बेसिस पे आते हैं। इफिशियंसी वाज अ डिफरेंस इन आवर्स और अ डिफरेंस इन आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड रेट। इफिशियंसी जब एनालाइज करते हो तब क्या कांस्टेंट रखना चाहिए तुमने, प्राइस लेवल चेंजेस। तो हमने क्या किया, इफिशियंसी डिफरेंस इज अ डिफरेंस इन आवर्स एंड डिफरेंस इन आउटपुट। इट इज अ डिफरेंस इन आवर्स एंड डिफरेंस इन व्हाट, आउटपुट। कुछ समझा क्या रे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड राइट हैंड साइड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए मैंने क्या कांस्टेंट रखना चाहिए, आवर्स या आउटपुट। तो यहां पर रेट का डिफरेंस था और ये सिर्फ फॉर्मूला अलग है। दोनों फॉर्मूला के हिसाब से आप आउटपुट पे करो या आवर्स पे करो, आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमने नॉर्मल अबनॉर्मल ऐसा एनालिसिस किया क्या, नहीं, हमने जो भी यूएओए था उसमें से इफिशियंसी की वजह से कितना है और एक्सपेंडिचर या प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से कितना है वो लिया। फिक्स ओवरहेड जब करते हैं तो एनालिसिस थोड़ा सा बदलेगा, कैसे वो कल देखते हैं।